ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਨ, ਸਾਰੀ ਜਾਨ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 100% ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਿਕਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲੀਮ ਕਰੀਏ, ਦੀਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ, ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਲਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੋ, ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੱਬਾ, ਪਿਤਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਜਿਆਲਾ ਹੋ ਤੇ ਉਜਿਆਲਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨੇਚਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਦਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਪਹਾੜ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾ, ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ,
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਓ ਤੇ ਪੀਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, और ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੀਪਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਤ ਭਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੇਤ ਭਰਿਆ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਮੂਸਾ ਦਾ ਹੈ,
ਨਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਲੂਸ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੌਨ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਰਗੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਈ, ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਾਣਾ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਸਮਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਆਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਖੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਭਜ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਮਪਾਇਰ ਤੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ, ਬੁੱਧ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਘਮੰਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਲਾਤੁਸ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦੇਵੋ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਰਹਿਮ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਲਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਔਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਉਸੀ ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਸੀ ਹੀ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं पवित्र अनुग्रह के लिए और इसके पवित्र वचन के लिए, क्योंकि प्रभु हमारा बोलने वाला प्रभु, सुनने वाला प्रभु है और देखने वाला प्रभु है। और पवित्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे हवाले हैं जिससे पता चलता है कि प्रभु देख भी सकता है, प्रभु सुन भी सकता है, प्रभु बोल भी सकता है। जिस तरह निर्गमन में प्रभु ने जब मूसा को कहा कि मैंने अपने इजरायलियों का दुख देखा और उनका चिल्लाना सुना, तो इसका अर्थ है कि प्रभु देखता भी है, प्रभु सुनता भी है। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु के कान उनके धर्मियों की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। और प्रभु हमारा जीता परमेश्वर है, क्योंकि जब दो बहनें कब्र के पास गई थी तो प्रभु के जीवित होने की गवाही किसी मनुष्यों ने नहीं दी थी, स्वर्गदूतों ने दी थी। तो स्वर्गदूत जो थे तो वो किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते थे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही रचना है स्वर्गदूत, जो प्रभु के अधीन रहते हैं। और उन्होंने मैसेज दिया कि तुम जीवितों को मरों में क्यों ढूंढ रही हो, प्रभु अपने वचन के मुताबिक जीवित हो चुका है। और प्रभु ने भी कहा था कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा। और प्रभु जो है हमारा बोलने वाला भी प्रभु है। इसी तरह उसने अपने मुंह से बोल के अपने वचन हर युग में अपने अपने बच्चों को, धर्मियों को दिए। और सबसे पहले उसने मूसा से ये किताबें लिखवाई हैं, जो पहली की किताबें हैं। अगर ना प्रभु बताता तो हम ना जान पाते कि ये सृष्टि कैसे बनी है, ये आकाश कैसे बना, ये सूरज, ये चाँद, ये ज़मीन, ये पानी, समुंदर, ये पेड़ पौधे और जानवर। तो हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि खुद रचयिता ने ये बताया, और बनाने वाला ही बेहतर बता सकता है कि उसने ये सारी चीज़ें कैसे बनाई हैं। तो प्रभु ने बनाया, इसलिए ही प्रभु ने खुद मूसा को बताया। और जो 40 दिन रात मूसा प्रभु के साथ रहा था, तो प्रभु मूसा को कलाम ही बता रहा था। तो इस तरह सभी मनुष्यों के पास ये रेवलेशन आया कि हम कोई बंदर से बदल के नहीं आए हैं, हमें सचमुच एक जीवते परमेश्वर ने बनाया है। हमें नहीं, उसने सारी सृष्टि को बनाया। उसने बंदर को बंदर बनाया, हाथी को हाथी बनाया, शेर को शेर बनाया, मनुष्य को मनुष्य बनाया। तो प्रभु ने अपना क्या दिया? वचन। और ये वचन और प्रभु दोनों सेपरेट नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का जो है हमें कंप्लीट रेवलेशन होना चाहिए। हाफ रेवलेशन जो है वो ठीक नहीं है। जिस तरह गॉस्पल ऑफ जॉन में आया है, योना की अंजील में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। अगर हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये सेपरेट है दोनों। लेकिन कभी भी आधा अगर पढ़ेंगे तो आधा ही रेवलेशन पाएंगे। आगे जो कंप्लीट है वचन, वो लिखा है वचन ही परमेश्वर था। अब यहीं पे बात नहीं ख़त्म होती। हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए कंटिन्यू पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। आगे 14 जाके वर्सेस में उसका कनेक्शन जाके रेवलेशन 14 वर्सेस में जोड़ा है कि वचन देहधारी हुआ, यानी जो बोलने वाला वचन था वो देहधारी हुआ। और वचन ही परमेश्वर है। तो उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन निकाला कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया।
इसलिए ग्रीक की बाइबल में आया है लोगस। जहाँ वचन पढ़ते हैं वहाँ लोगस लिखा हुआ है कि वो लोगस था। लोगस मीन्स एक वो पावर जो कोई शेप नहीं बता सकते, लेकिन उसमें से साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसमें से जो साउंड निकली वैसा वैसा हो गया। उसने आकाश बोला, आकाश बन गया। यानी वो उसकी पावर का कोई हम मेजरमेंट नहीं कर सकते कि उसकी पावर कितनी हद तक है। उसकी पावर हम नहीं सोच सकते कि जिसने सिर्फ बोला है कि आकाश बन जाए, आकाश बन जाए। जिसने सिर्फ मुंह से शब्द निकाला उजाला हो, और उजाला हो गया, तो उसकी पावर का हम अब वही पावर देखो कि एक मुर्दे को कह रही है उठ के बाहर आ जा लाजर, और 3 दिन का मुर्दा उठ के बाहर आ गया, कि उसकी कितनी पावर। यानी मीन्स ही इज़ द ऑथर, ही इज़ द ओनर। वो मालिक है हर चीज़ का, जीवन का भी मृत्यु का भी। तो पर उसने, उसका अनुग्रह कितना है कि उसने अपना जो प्रकाशन है वो छुपाया नहीं। उसने बताया, लेकिन बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब मनुष्य बढ़े तो हर एक मनुष्य ने अपना अपना खुद का मार्ग बना लिया। किसी ने बना लिया बछड़ा, किसी ने पेड़ों को परमेश्वर बना लिया, किसी ने जानवर को, किसी ने सांप को। तो परमेश्वर ने जब देखा कि जो असली परमेश्वर था उसको छोड़कर इंसानों ने उस परमेश्वर की रचना को परमेश्वर बना दिया, जो कि रोमन्स में हम 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि लोगों मनुष्यों से क्या पाप हुआ कि उन मनुष्यों ने रचयिता को छोड़कर रचयिता की रचना की उपासना शुरू कर दी। यानी क्रिएटर को छोड़कर क्रिएशन की वर्शिप शुरू कर दी। जैसे सूर्य की, सूरज कोई क्रिएटर नहीं है, सूर्य तो खुद क्या है, क्रिएशन है। तो लोगों ने क्या बना दिया उसे क्रिएटर, की ये भगवान है जिसने सब कुछ किया हुआ। तो जो असली रचयिता था उसको इस बात का हर्ट हुआ कि मेरा बनाया मनुष्य क्या कर रहा है। मैंने जिन मनुष्यों के लिए ये चीज़ें बनाई थी सुविधा के लिए, बल्कि इनको दी थी कि ये इनका बेनिफिट ले सूरज का, पेड़ पौधों का, पर इन लोगों ने क्या किया, उनकी क्या शुरू कर दी है, वर्शिप। तो परमेश्वर, मनुष्य भटक गया था, तो परमेश्वर को अपना क्या देना पड़ा, मैसेज थ्रू मोसेस। तो सबसे पहले परमेश्वर ने शुरुआत किया कि बेस फाउंडेशन से, वो क्या है, 10 कमांडमेंट्स। और जो प्रभु को सबसे प्यारा वचन था, जहाँ जो सबसे उसकी सॉलिड इच्छा है, तो वचन क्या है, प्रभु का माइंड, राइट। बाइबल क्या है, माइंड। What you have to do, what you have to don't do and don't, right? कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे हमारा भी एक मन होता है ना, हमें जो कुछ चीज़ें पसंद होती है, कुछ नहीं होती, वो हमारा मन होता है। अगर हम उन अपनी उस थॉट को किसी में लिख दें तो वो हमारा मन क्या है, उस किताब में उतर गया कि भाई हमें ये खाना पसंद है, ये खाना नहीं पसंद। तो प्रभु ने भी यही किया कि मैं मनुष्यों को बताऊं कि कौन सी चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं और कौन सी पसंद है। तो प्रभु ने मोसेस को कहा, बुलाया, लेकिन प्रभु ने वो जो कमांडमेंट्स थी वो मूसा को नहीं लिखने दी, उसने खुद लिखी। जो हाथ था वो मूसा का नहीं था, वो प्रभु का था। 10 कमांडमेंट्स है। तो प्रभु ने जो कलाम लिखा है वो खुद लिखा था, और प्रभु ने जो 10 कमांडमेंट्स दी थी, तो 1 2 3 4 5 करते ऐसे 10 दी थी। लेकिन जब आप किसी को अपने शौक बताते हैं, तो जो सबसे प्यारा शौक होता है आपका, जिसके लिए सबसे जिसको प्रेफरेंस देते हैं, आप उसको 10वें नंबर पे नहीं रखेंगे।
पॉइंट। जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, इसको पहले नंबर पे नहीं रखा, इसको इससे भी ज़्यादा जरूरी क्या था कि तेरा यहोवा परमेश्वर एक परमेश्वर है, तुम मुझे छोड़कर, यानी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बाकी आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, मुंह से कम ज़्यादा अब निकल गया चल जाएगा, मैं माफ़ कर, पर ये चीज़ वाली माफ़ी लायक नहीं है। ठीक, तो प्रभु ने पहले नंबर पे ये रखा, तुम्हारा जीता परमेश्वर, परमेश्वर यहोवा एक परमेश्वर है, मुझे छोड़कर दूसरे की उपासना नहीं। फिर दूसरे नंबर पे जो बनता भी था, तुम मेरी कोई मूर्ति। अब देखें, आप इनको सोच के देखें, अगर 2 नंबर को पहले पे कर देंगे तो ठीक नहीं लगेगा ना, कि तुम मूर्ति मेरी ना बनाना, राइट। तो पहले नंबर पे प्रभु ने क्या रखा, मैं तुम्हारा एक परमेश्वर हूँ, तो पहले ये समझो, जब ये समझ आ गया फिर तुम्हें अगला समझ आएगा, मूर्ति ना बनाना। तो प्रभु ने कहा तुम मेरी कोई भी मूर्ति ना बनाना। अब चाहे तुम मेरे नाम पर बनाओ, चाहे तुम विश्वासी बन के बनाओ, पर जो मैंने मना कर दिया गलत है तो गलत है। चाहे तुम क्रिश्चियन बन के बनाओ, चाहे नॉन क्रिश्चियन बन के, पर जो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, चाहे तुम कहो कि मैं ये विश्वासी हूँ, वो विश्वासी हूँ, मुझे नहीं पसंद। तो प्रभु ने ऐसे अपना कलाम जो वचन मूसा को दी। अब उस वचन की पावर हम देख चुके हैं जेनेसिस में, उसने जब वचन निकला है कि उजाला हो तो उजाला था, वचन की इतनी पावर है। जब वचन प्रभु ने नेचर को कमांड दी, जब परमेश्वर ने, क्रिएटर ने अपने नेचर को कमांड दी कि उजाला आ जा, तो उजाला ने मना नहीं किया, डिले नहीं किया, गैप नहीं है। प्रभु ने कहा उजाला हो उजाला, राइट। तो यानी वचन की कितनी पावर है, और उसकी पावर जो है यशाया में बताई गई है, यशाया 55 में उसकी 10 में, कि जिस तरह बारिश जब ऊपर से आती है वापस नहीं जाती, जिस तरह बर्फ स्नो ऊपर से गिरती वापस नहीं जाती, प्रभु कहता वैसा ही मेरा वचन होता है, एक बार निकल गया ना, जब निकला है तो उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैंने वचन को, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके आएगा, फेल होके नहीं आएगा। आमीन। तो अब देखो, प्रभु ने हमें वो वचन जो था जब नेचर को दिया, तो नेचर कमांड मान रहा है। उसने सूर्य को बोला सूर्य खड़ा है, चांद को बोला चांद खड़ा है, समुद्र इतने इतने विशाल, प्रभु ने समुद्रों को कहा भी हद में रहना, उसी वक्त वो हद में चले गए। हालांकि 76 एंड 74% जो है समुद्र पानी है, 20 समथिंग जमीन है ड्राई, चाहे तो परमेश्वर एक बार हाथ उठा ले तो पता भी ना चलेगा। तो परमेश्वर ने जो नेचर को कमांड दिया, तो नेचर हमसे कितना पावरफुल है, चाहे समुंदर है, चाहे बारिश है, चाहे कुछ है, नेचर हमसे कितना पावरफुल है, शेर तक डालो प्रभु की कमांड में है। लेकिन जब उससे परमेश्वर ने अपना वचन मनुष्यों को दिया, मनुष्यों ने उसे बिल्कुल हल्के में लिया। देखा आपने, वो वचन जब नेचर को दे रहा है जो हमसे कई गुना पावरफुल है, सूरज, तो वो विद इन सेकंड कमांड मान रहा है। जब वो हमको दे रहा है मनुष्यों को, ठीक है मैं बिजी हूँ, देख ये फर्क है। तो परमेश्वर ने, साइंस तो पता नहीं खरबों बता रही हैं, इतने समुद्र के जानवर हैं खरबों करोड़ों, तो आप देखें कि वो सारे परमेश्वर के अधीन है, सारी चीजें परमेश्वर के अधीन है, कहना मान रही है। जब परमेश्वर ने बताया कि मैं किस चीज को बनाकर मैं हर्ट हुआ, जब परमेश्वर ने बताया कि मैं किस चीज को बनाकर हर्ट हुआ, जानवर समुद्र के अरबों खरबों हैं, जमीन के ऊपर जानवर अरबों खरबों हैं,
तो इतने अरबों खरबों में परमेश्वर ने कहा मैं एक चीज से हट हूं, मनुष्य से। अरबों खरबों में एक जानवर नहीं निकला जो प्रभु कहे यार मैं इसको बना के हटूंगा, शेर, कुत्ता, बिल्ला, किसी को, क्योंकि वो तब भी परमेश्वर के अधीन थे, आज भी वो प्रभु के लॉ से बाहर नहीं हुए। जैसा प्रभु ने जेनेसिस में रखा था आज भी सेम वो उसी कमांड में है। लेकिन हम मनुष्य पूरी तरह जो है परमेश्वर के कलाम से, बल्कि हम इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब क्रिएटर को मजाक में ले लेते हैं, उसका मजाक बना देते हैं। लेकिन फिर ये देखें कि हमारे पास इतनी सहन शक्ति नहीं है, उसकी सहन शक्ति हम सोच नहीं सकते कि हमें गुस्सा आ रहा है वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है। तो हमें एक इंसान को देख के गुस्सा आ जाता है, वो सारी सृष्टि पे पता नहीं कितने भरे पड़े हैं जिनको बर्दाश्त कर रहा है। तो इसलिए ये खूबी सिर्फ परमेश्वर में ही है, देवी देवता में भी नहीं है इतनी सहन शक्ति। इसीलिए वो परमेश्वर है कि वो इतना सहन कर रहा है कि मनुष्य इतना गुनाह में चला गया। लेकिन जब उसने वो वही वचन अपने नबियों को, दासों को चुना, उनसे लिखवाया, तो प्रभु परमेश्वर ने, आप देखें व्यवस्था विवरण में हम पढ़ेंगे तो इसमें आप देखें व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने कुछ यहाँ पर बोला। प्रभु परमेश्वर ने यहाँ कहा है व्यवस्था विवरण 6 में आप देखें, व्यवस्था विवरण 6 में। तो वैसे तो जब आप इससे पहले देखेंगे तो यहाँ 10 कमांडमेंट दी जा रही है 5 में, और प्रभु का जलाल उतरा, सारा पहाड़ हिल रहा है। आप देखेंगे 5 अध्याय में जो इजरायली थे वो डर के बेचारे भाग गए कि हम तो नहीं भाई इस परमेश्वर से मिल सकते, मूसा जी आप ही देखें। ठीक, तो 6 आयत में जब वचन मूसा के पास आया तो बताना शुरू किया मूसा ने कि भाई मुझे उसने ये बोला है, उसने मुझे बता दिया डू और डोंट, कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अब देखें क्रिएटर ने बोल दिया कि मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद है, मूसा ने लिख लिया। अब परमेश्वर के लोगों के पास वचन आ गया है, ठीक है, कि भाई परमेश्वर ने ये बताया ये करना है कि नहीं करना है। अब ये आप पर है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसने रोबोट नहीं बनाया कि एवरीथिंग इज ए प्री डेस्टिनेटेड, कि कोई चिप डाल दी है अब परमेश्वर के ही आपको उठा रहा है, बैठा रहा है, चला रहा है, उठा रहा है। बाइबल में लिखा है गॉड हैज क्रिएटेड लाइक यू फ्री मॉरल एजेंसी। फ्री मॉरल एजेंसी मीन्स गॉड हैज क्रिएटेड यू बट यू हैव ए इंडिपेंडेंट माइंड, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू। पूरी तरह आप आज़ाद है फैसले लेने के लिए। वो परमेश्वर आपको फोर्स नहीं करता कि आप अच्छा करें कि बुरा करें, आप फ्री हैं। आपका माइंड परमेश्वर ने आपके कंट्रोल में दे दिया है कि आप उससे सही इस्तेमाल करें चाहे गलत। इसलिए लिखा है कि तेरे सामने मैंने जीवन का मार्ग भी रखा है और नरक का भी द्वार रखा हुआ रास्ता, चुनना तुमने है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ जीवन को चुनना। मीन्स माम को परमेश्वर ने फ्री बना दिया है कि तभी तो जजमेंट करेगा ना। जब वो ये नहीं जो सब कुछ वही करवा रहा है तो फिर जजमेंट क्यों के ले रहा है हमारी। भाई तुमने ही करवाया कि कत्ल कर रहा, कत्ल करो, तुमने करवाया, कहा था कर दिया मैंने कत्ल न। तो 6 आयत में देखिए प्रभु का जब वचन आ गया लिखत में, तो प्रभु कह रहे मैं ये आज्ञा, ये विधियाँ, ये नियम जो तुम्हें सिखाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें आज्ञा दी है, जो परमेश्वर तुम्हें गुलामी से निकाल के ले आया है, इसको अपने बच्चों के साथ, अपने बेटे, अपने पोतों के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए इन सब आज्ञाओं पर चलना। कि आपने पहले तो ये सुन लो कि तुमने चलना है, बाद में परमेश्वर बताएगा कि उससे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है।
पर जो भी पता परमेश्वर बताने जा रहा है कि तुमने उस पर सिर्फ बिलीव नहीं करना, यू हैव टू वॉक अकॉर्डिंग टू दैट कमांड। बिलीव एंड वॉक, दैट बोथ आर डिफरेंट वे। देख, कुछ लोग कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम क्रिश्चियन हैं, बट वो बाइबल के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं जी रहे होते हैं। यानी प्रभु कहता है जो मुझे सिर्फ हे प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग नहीं जाएगा, जो मेरी बातों को सुनकर उन पर चलता है वो स्वर्ग है। अगर तुम मुझसे सचमुच प्रेम करते हो, कौन से वाला, अगापे, तब तुम में ये साइन होगा कि तुम मेरी आज्ञा को मानते हो। अगर चेक करना है कि प्रेम सही है बंदे का, अब मेरे कहने से क्या हो जाता है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, है ना। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि फेथ एंड वर्क वॉक टुगेदर। जहाँ विश्वास सही होगा वहाँ कर्म भी सही हो जाएंगे, बाइबल के अकॉर्डिंग, राइट। जहाँ विश्वास गलत है वहाँ आपके हमेशा कर्म बिल्कुल नहीं सही होंगे। जब विश्वास सही आएगा ना, सही विश्वास आपको क्या लाएगा, ओबीडियंस, आज्ञाकारी, आप आज्ञाकारी हो जाओगे। तो प्रभु कह रहा है कि तुमने इस पर क्या है, चलना है। तो परमेश्वर कह रहा है 4 आयत में 6 की, ये इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। फर्स्ट सुन ले भाई इस्राएल, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, करोड़ नहीं, लाख नहीं है, 1 से 2 ना करना। उसके बाद चाहे तुम कहो मैंने दान दिया 1 करोड़ चर्च को, मैंने ये कर दिया, मैं तो बहुत अच्छे कैसेट निकाली है जीसस पापा की, डज नॉट मैटर। परमेश्वर ना दानों से खुश होता है, ना नाचने से खुश होता है। परमेश्वर सिर्फ अपने वचन के माने जाने से खुश होता है। आमीन। आपका दान तभी काम आएगा जब आप आज्ञाकारी होंगे। जब आपने आज्ञाएं तोड़ दी हैं, फिर चाहे वो रिश्वत नहीं लेता। इतना तो उसने बिलाम ने भी बोल दिया था, कहता वो मनुष्य नहीं है जो रिश्वत ले ले, वो मनुष्य नहीं है कि फैसला बदल दे। जब एक बार वो ना कर देता है तो 50 बार भी ना ही होती है, जब हाँ कर देता है तो फिर वो ना नहीं करता। तो वो प्रभु कह रहा है कि एक ही है, तो अपने परमेश्वर को जब मानना है तो उसमें तेरा सारा मन हो। आधा मन लेके ना मान, आधा ना दे, आधा नहीं चाहिए उसे, क्योंकि वो मालिक है, उसे हर चीज़ें पूरी चाहिए। उसने हमें आधा नहीं बनाया, उसने पूरा बनाया है। जब मन देना है उसको कितना देना है, 99 भी नहीं चलेगा। क्या लिखा है, सारे मन से और अपनी सारी जान से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये पूरी तीनों चीज़ें क्या देनी है, पूरी उसको समर्पित करनी है। फिर प्रभु कह रहा है कि 10 आयत से जिस चीज़ से बचना है, जो एक ट्रैप है जो हमने बात की थी, जहाँ तो इंसान बहुत गरीबी में प्रभु से दूर हो जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा धन दौलत ऐश प्रस्ती पैसा, जहाँ ये देश भी बहुत सारे विश्वासियों को प्रभु से दूर ले गए। प्रभु इस चीज़ की चेतावनी 10 आयत से देखें, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए। ये हमारे लिए मैसेज है, राइट, क्योंकि हम भी इजराइलियों की तरह निकल के आए हैं अपने मिस्र से। हम भी निकल के आए हैं, इजराइलियों को मिस्र से ब्लेस्ड कंट्री में पहुंचाया, हमको भी प्रभु ने इंडिया से निकालेगा। तो प्रभु कह रहा है जब तुम उस देश में पहुंचो जहां मैं तुम्हें पहुंचाया, ठीक, जब तुम पहुंचो, याकूब नामक इब्राहिम इसाक याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझसे देने की शपथ खाई थी, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए थे, जब तुम वहां पहुंच जाओ, ठीक, तुम ऐसे देश में पहुंच जाओ जहाँ के घर बड़े बड़े महल तुमने नहीं बनाए, हमने तो बनाए नहीं यहाँ जिस देश में आए हैं, ठीक। तो प्रभु कह रहा है जहाँ और अच्छे अच्छे पदार्थ से तुम भर जाओ जो तुमने खुद नहीं उगाए, जो तुमने वहाँ जाकर अच्छा खाना खा रहे हो, जो जिस पे तुमने मेहनत नहीं की थी, ठीक।
और ऐसे कुएं से पानी पी रहे हो जो तुमने खुद नहीं खोदे। तुमको क्या दिया मैंने? सारा कुछ रेडीमेड। जाओ और मेरी ब्लेसिंग का क्या करो? आनंद मनाओ। वो कुएं मिल गए जो तुमने खोदे ही नहीं, घर वो मिल गए जो तुमने बनाए नहीं, और वो दाख की बारियां खा के तृप्त हो जाओ जो दाख की बारियों के वृक्ष तुमने नहीं लगाए थे। ठीक। हाँ, अब देखिए बदर आगे प्रभु जो चेतावनी दे रहा है, ये सब वस्तुएं जब मैंने तुम्हें दी, अमीर किसने दी? परमेश्वर खुदावन। मैंने तुम्हें ये सारी आशीषें दे दी, ठीक, तुम खाकर तृप्त हो गए। वाह, यूके आ गए हैं, अच्छे घर हैं, अच्छी लाइफ है, अच्छी जॉब, क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, गाड़ियां, घर बार पे सब कुछ है, खा के तृप्त हो गए ना। तब सावधानी का समय तब है, राइट। तब सावधानी वाला पीरियड तुम्हारा शुरू होता है, क्योंकि इंडिया में तो फिर सब चर्च भी जा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, मामला यहाँ खराब होता है। 12 ऐसे शुरू हुई ना सावधानी। अब ये वचन जो है मूसा का है कि परमेश्वर का है? परमेश्वर का ना है। हु इज मोसेस? मोसेस इज ए मीडिएटर, राइट। मूसा तो भाई उसने पकड़ा परमेश्वर से, कहता लो भाई इस्राएलियों तुम्हारी मर्जी है भाई, उसने बता दिया ये पसंद है, ये मैं तो चल रहा हूँ, आमीन। प्रभु कह रहा है तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा को भूल जाओ, जिसने दिया है उसी को भूल जाओ कहीं। ये प्रभु हजारों साल पहले लिखवा रहा है, उसको पता है ना कि मैंने जो मनुष्य बनाया मुझे पता है इसका लेवल क्या है। तुम ऐसा ना हो कि तुम यहोवा को ही भूल जाओ जो तुम्हें गुलामी से अर्थात मिस्र देश से निकाल के लाए। याद रखो किन हालातों से निकाल के लाया है, तो जो निकाल सकता है वो वापस डाल भी सकता है ना। तो कहता है याद रखना, क्या पता वो नियम चेंज करवा दे, है ना। तो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी सेवा ना छोड़ना। जो सेवा है करता रहे, जो भी लगी हुई है, गीत गा रहा है तो अपना गाता रहे भाई, पिकअप ड्रॉप का भी है, ये प्रभु के काम में जो भी कर रहे हैं, पानी का गिलास भी पिला रहे हैं, सेवा है, कहता प्रभु कहता इसका भी अजर लोगे तुम फल, है ना। तो उसके नाम भी करते रहना। तो इसके आगे जाना जरा आप। तो ये चैप्टर सारा, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। तो 7 की 12 में देखिए, साथ में तुम जब इन नियमों को सुनकर मानोगे, अगर तो तुम अब आ गया इफ आ गया ना। अब अगर जेकर तुसी मनोगे, जेकर नहीं मनोगे। अगर मनोगे ताकि होगा, अगर नहीं मानोगे तो क्या। अगर तो तुम मानोगे, अब 2 चीजें, 2 वर्ड आए होंगे ना, बिलीव एंड ओबे, है ना इंग्लिश में। हिंदी में आया है अगर मानोगे और चलोगे। 2 चीजें अलग होती है ना, मानना चलना, राइट। बिलीव एंड वॉक, है ना। पर एक और चीज आई हुई है, सुनना। प्रकाशित वाक्य में लिखा है धन्य हैं जो सुनते हैं, है ना, जो मानते हैं, जो इस पर चलते हैं। ठीक। नियमों को जब सुनकर मानोगे और चलोगे, क्योंकि कुछ लोग सुनते हैं लेकिन मानते नहीं तो चलते क्या होंगे, राइट। तो तेरा परमेश्वर यहोवा को फिर क्या करेगा? तेरा परमेश्वर यहोवा उस करुणा में दया वाचा का पालन करेगा, वो भी अपने प्रॉमिस पर खड़ा उतरेगा, वो पीछे नहीं हटेगा अगर तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। और वह तुझसे प्रेम रखेगा। कौन से वाला? अनकंडीशनल, ठीक। और वह तुझे आशीष देगा। ये सबको चाहिए, है ना।
कर्ज तो किसी को नहीं चाहिए ना, आशीष ही चाहिए ना हम सबको। प्रभु ने फिर कैसे मिलेंगी आशीषें, इस सवाल का आंसर कहाँ है बाइबल में। प्रभु क्या देगा, आशीष देगा, पर उसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है ये हमने पढ़ा है, अगर सुनकर मानोगे और चलोगे, ठीक, तो वह तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारी गिनती बढ़ाएगा, और जो देश उसने तुम्हें दिया है वह तुम्हें देगा, जैसा अब्राहम को दिया था। तो प्रभु तुम्हें आशीष देगा। तो इसमें सारे प्रॉमिस आए हुए हैं कि तेरे दुश्मन कामयाब नहीं होंगे, वो एक तरफ से चढ़ाई करेंगे, 7 तरफ से भागेंगे, तेरा घर, झोंपड़ी, टोकरी, हर चीज़ की यहोवा क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसमें एक और मैं चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ भाई, 8:17 में देखें, 8:17 में भी प्रभु ने क्या दिया है। 8:17 में प्रभु कह रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये सारा मतलब एम्पायर, ये सारा धन दौलत, घर बार, संपत्ति मेरे ही अकल से, मेरे पढ़ाई लिखाई से, मेरे नॉलेज से, मेरी सामर्थ्य से, या मेरी ताकत से ही मुझे मिली है। तो कहीं ऐसा ना सोचना कि ये तेरी अपनी अकल ते बोए। तो योशुआ ने भी कहा था, इजराइलियों ये मत सोचना कि तुम अपने बहुत ताकतवर थे इसलिए दुश्मन से जीते, तुम इसलिए जीते क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें जिताया। आमीन। एक चीज मुझे और बहुत अच्छी लगी कि परमेश्वर की ओर से जो ब्लेसिंग्स होती है वो कैसे मिलती है। एकदम से सारी आएंगी छप्पड़ फाड़ के, या धीरे धीरे। अब प्रभु ने इस अध्याय में बताया है कि आपको जो प्रभु ब्लेसिंग देगा ना, वो कभी एक दिन में नहीं सारी आएंगी, उसका भी कारण है। 7 अध्याय में 7:22 में आप देखें, प्रभु कहता है मैं तुम्हें ब्लेसिंग कैसे दूंगा। जिनको बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स मिलती है ना, उनमें हमेशा गड़बड़ होती है, उनमें दुख जरूर होगा। और बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर आशीष देगा उसमें कभी भी दुख नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग का यही साइन होगा कि उसमें दुख नहीं होगा। अब 22 आयत में देखे, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उन जातियों को तेरे आगे, तेरे दुश्मनों को तेरे आगे धीरे 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 से हटाएगा, एक दिन में नहीं हटाएगा। अगर हम कहें कि हमारी प्रॉब्लम्स आज ही खत्म हो, दुआ कर रहे हैं, तो ये गलत दुआ हो जाएगी। हम परमेश्वर को नहीं कंडीशन दे सकते कि हमें ये ऐसा ही कर दूं, है ना। तो यहाँ लिखा है कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे आगे से धीरे धीरे से साइड पे करूँगा। उसका कारण है, उसमें भी तुम्हारी भलाई है। क्यों धीरे धीरे से दूर करेगा? क्योंकि तू एकदम से उनका अंत नहीं करेगा, एक दिन में अपनी प्रॉब्लम्स का अंत नहीं कर पाएगा। अगर अंत कर दिया तो अगले दिन से तू भी बदल जाएगा। हम तो अभी फिर जाते हैं, है ना। पौलुस कहता मेरे पास सबसे ज्यादा दान वरदान, लेकिन फिर भी मेरे एक कांटा चुभो दिया गया। उसके लिए भी मैंने प्रभु से प्रार्थना की 3 बार। प्रभु कहता मेरा अनुग्रह पहले ही तेरे पे बहुत है। कहता मैं क्यों, कहता इतना प्रकाशन मुझे मिल गया कि मैं कहीं फूल ना जाऊं घमंड में। तो परमेश्वर ने एक कांटा रख दिया, कमी रख दी मेरे में कि मेरा दिमाग नहीं। तो प्रभु कह रहा है मैं धीरे धीरे से तेरी प्रॉब्लम क्या करूँगा, दूर करूँगा, ताकि तू एकदम से उनका अंत नहीं कर सकेगा। नहीं तो जंगली जानवर जो आकर क्या करेंगे,
तुम लोगों को मार देंगे। जो मैं धीरे धीरे तेरे दुश्मन खत्म कर रहा हूँ उसका कोई कारण है, वो तेरे ही फायदे के लिए है, ताकि जंगली जानवर तुम्हारे अंत ना कर दे। वो तेरे जो दुश्मन है कम से कम वो जंगली जानवर तो संभाल रहे हैं, जिनके खिलाफ तुझे लड़ना पड़ेगा फिलहाल तेरे दुश्मन संभाल रहे हैं। आमीन। मैंने उनको उधर बिजी किया हुआ है। तो दैट मीन्स कि हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। विश्वासी के जीवन में सब चीजें मिलकर भलाई ही उत्पन्न होती है। कितना इतना ही पढ़ा आप लोगों ने, आगे कुछ पढ़ा उसके? सब लोग इतना ही पढ़ते हैं, प्रचारक भी इतना ही प्रचार करते हैं, कलीसिया पास्टर जी लो दसवां, आगे भी कुछ लिखा हुआ है। पर आपको पता है हिंदी की बाइबलों में नहीं है, किंग जेम्स बाइबल में है। रोमन 60 भी काटी हुई है। हमारी हिंदी वाली बाइबल अगर पढ़ते हैं तो प्लीज़ इंग्लिश वाली किंग जेम्स का साथ में पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत सारी एरर है हिंदी में ट्रांसलेशन में हमारी। तो वहाँ लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, सबके लिए नहीं है। जैसे रोमन्स की 8वीं कहता है कि परमेश्वर आप ही अंत में अपने सारे कामों को पूरा करेगा, पर हिंदी में वो पूरी वर्ष काट दी गई है। तो प्रभु कहता है मैं धीरे धीरे से तेरी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करूँगा, एकदम से नहीं सॉल्व करूँगा। कहीं जंगली जानवर आके क्या करें, तुम्हारा नुकसान ना कर दें। तो प्रॉब्लम जो प्रभु धीरे धीरे दूर कर रहा है ना, उसमें भी हमारा क्या है, भला है। कोई ना कोई और चीज़ है जो हमारा नुकसान कर सकती है, प्रभु उनको रोकने के लिए हमारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर कर रहा है। तो परमेश्वर ने क्या दिया, वचन। तो प्रभु के मुख से क्या निकला, वचन। अब जिस भाई या जिस बहन के मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द जो होते हैं वही भाई और बहन ही होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मान लीजिए इस बाइबल के संदेश के बाद हम दुनियावी बातें करते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं तो वो जसविंदर है, राइट। जब भाई जोशुआ बोलेंगे तो भाई जोशुआ के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द क्या है, भाई जोशुआ है। ठीक है भाई मुकेश। जब आप बोलेंगे आपके मुंह से निकलेंगे शब्द, वो भाई मुकेश है। अब जब परमेश्वर के मुंह से निकल रहे हैं शब्द, वो क्या है, परमेश्वर है। समझ रहे ना। अब समझे आप योना की इंजील की आद में जो शब्द था परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। ठीक। अब हुआ क्या कि ये शब्द ऐसे नहीं था कि लिखत में आसमान में घूम रहा था, राइट। वो लोगस था, वो पावर थी जिसने एंजल्स बनाए, फरिश्ते बनाए, हेवन था। पर हेल उसने जो थी इंटरनल नहीं बनाई, हेवन इंटरनल बनाया है। इसलिए हेल नहीं आया कि इंटरनल है, हेल एक दिन खत्म होनी है, लेकिन हेवन जो है इंटरनल है क्योंकि गॉड इज इंटरनल। तो परमेश्वर ने फरिश्ते बनाए, लेकिन जब जो मुंह से बोलता रहा वो बनता रहा। अब वो वचन जो था परमेश्वर, वो उसने मूसा को दिया। मूसा ने उसको क्या लिखा, पत्थर की तख्तियों पे लिखा। बाद में मांस को छिल कर पतला करके कलम में शुरू हो गया। तो यानी परमेश्वर का कलाम जो था पत्थर पर, मांस के ऊपर, स्किन पर, तो आज क्या आ गया, प्रिंट के ऊपर, राइट। अब ये एक कागज है, इसके ऊपर एक स्याही से प्रिंट हो रखा है, राइट। लेकिन अगर हम माने कि ये सिर्फ एक किताब है तो फिर हमारे लिए काम नहीं करेगी ये पवित्र शास्त्र, राइट। लेकिन जब हम इसमें जो लिखा है, अब जो हमने पढ़ा, ये एज इट इज है जो क्रिएटर ने बोला है, ना बढ़ाया गया ना घटाया गया। और हमने क्या किया, इसको एज इट इज क्या किया, आमीन प्रभु, हम डाउट नहीं कर रहे,
हम विश्वास कर रहे हैं पूरे मन से कि ये आपका वचन है, आमीन है। और आपने आपको जो पसंद है हम वो करेंगे, जो नहीं पसंद नहीं करेंगे। जब अब हम इस पर अपने बिलीव को एक्शन में भी दिखाते हैं, फिर रिजल्ट चेंज होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये क्या करेगा, ये वचन हमने जो 5 सेंस प्रभु ने दी, हमने एक तो कान इस्तेमाल किए जी। कान प्रभु ने दिए, क्यों दिए? है ना, वचन सुना हमने। हम आंखों से वचन को पढ़ा, हाथों से उठा। 5 सेंस ने हमारा ये वचन स्टोर कर कर कहाँ पहुंचा दिया? हमारे हृदय में। इसलिए उसने कहीं नहीं लिखा मैं दिमाग में रहता हूँ, वही दिमाग तो शैतान का घर है ना, दिमाग की रक्षा कर। मैं तुम्हारे कहाँ खड़ा हूँ? दिल के द्वार पर, है ना, बॉडी सोल एंड माइंड एंड हार्ट। तो जब ये वचन हमने अपने हृदय में ले लिया और प्रभु पर कहा, प्रभु आमीन है, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, कोई शक नहीं करता, और मैं अपना जीवन इसके मुताबिक जीता हूँ। तो क्या ले, परमेश्वर क्या है? गॉड इज ए स्पिरिट, गॉड इज ए फुल ऑफ एट्रीब्यूट। एक परमेश्वर कई गुणों वाला, ठीक। गॉड इज ए स्पिरिट, वो कौन सा है? होली स्पिरिट। तो वर्ड भी वही है। जब परमेश्वर जो आत्मा है वो देखता है कि इस बच्चे ने मेरा मुंह से निकले हुए वचन को इतने बुरे हालातों में, इतने अंधकार वाले युग में जहां लोग दूर हो रहे हैं, इसने विश्वास किया, आमीन किया। तब क्या लिखा है? प्रभु कह रहा है यूहन्ना, जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, गाइड कर रहा था, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि जहां वचन नहीं वहां आत्मा नहीं, क्योंकि दोनों एक है। आमीन। आमीन। किसने लिखवाया वचन? आपको तिमोथियस पढ़ना पड़ेगा। किसी भी नबी ने अपने मन से वचन नहीं लिखा, परमेश्वर के बाय द इंस्पायरेशन ऑफ द होली गोस्ट। हालेलुया। राइट? हु इज द ऑथर एंड हु इज द टीचर? होली गोस्ट। तो जब उस होली गोस्ट का बोला हुआ वचन आपने आमीन किया, के अंदर रख लिया, होली गोस्ट इज ए वर्ड, तो वचन जब अंदर आया तो आत्मा अंदर आना ही आना है। आमीन। राइट? समझ रहे हैं ना आप? पर जब पहले से ही इसके अंदर कोई और नाम है, अंदर पहले से ही कोई दूसरा बैठा हुआ है परमेश्वर, तो वो आधे में नहीं आएगा, उसे पूरा चाहिए। कितना चाहिए उसको? सारा दिल चाहिए ना। तो जब पूरे दिल से आप वचन ले लेते हैं तो वचन ही आत्मा है। तो आत्मा क्या आता है? जो साथ होगा तुम्हारे अंदर होगा। तो प्रभु कह रहा है कि वो आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। फिर कुरिन्थियों वाला 4 अध्याय पूरा होगा। अब तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये ईंटों की बिल्डिंग नहीं है चर्च। यू आर द टेम्पल ऑफ द गॉड बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द गॉड इज लिविंग इनसाइड यू। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास कर रहा है। अब तुम चलती फिरती बाइबल हो। हालेलुया। अब देखो कुछ लोगों को बाइबल नहीं खोलने की जरूरत पड़ती, वो बिना खोले सारी बाइबल प्रीच कर देते। क्यों? क्योंकि सारी बाइबल तो उनके हृदय में क्या है? स्टोर है। तो परमेश्वर का आत्मा के अंदर आ गया। अब रैप्चर वाले दिन हमारे अपने आत्मा में ताकत नहीं है कि हमारी बॉडी को चेंज करे। राइट? प्रभु यीशु मसीह का जब वो 3 दिन बाद जिंदा हुए तो किस आत्मा ने किया था? वही तो था, पवित्र आत्मा, है ना। तो रैप्चर वाले दिन भी यही पवित्र आत्मा जो है हमारी बॉडी को बदल देगा। बादलों पर हम प्रभु से मिलेंगे, क्योंकि लहू और मांस प्रभु का सामना स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। तो जो पवित्र आत्मा अंदर है वही उस दिन, जिस दिन वो दिन आ गया, प्रभु हमारा शरीर बदल देगा। और जिसके बाद पवित्र आत्मा है वही समझदार कुआरियां हैं, वाइज नॉट फुलिश।
जागी तो सारी, पर 5 के बाद क्या था? तेल। एंड व्हाट इज द ऑयल? ऑयल इज द स्पिरिट। तो स्पिरिट कैसे मिला? हमने देखा ना, स्पिरिट कैसे अंदर आया। तो वो ये स्पिरिट जो था वो वाइस थी, उनके पास तेल था, आत्मा था। और प्रभु जब आया तो वो 5 तैयार थी, जो तैयार थी प्रभु के साथ चलेगी। मोरा कहती हमें भी तेल दे दे। वो कहती जाके ले आओ जहाँ बेच रहे थे तुम्हें नकली पवित्र आत्मा, वो लेने भी चली गई। तो जब वापस आई तो 5 समझा, तो प्रभु को कह रही है प्रभु द्वार खोल दे। प्रभु कहता मैं तुम्हें जानते हैं। वो नॉन क्रिश्चियन नहीं थे, क्रिश्चियन ही थे ना वो, किनके लिए? बिल्कुल कहते मैं तुम्हें, वो कहते हमने प्रभु तेरे नाम से देखो भूत कड्ढे, तेरे नाम से लाखों लोगों को चिंगाई, हीलिंग, शिफा दी। प्रभु कहता है लोग आके कहेंगे तेरे नाम से भूत निकाले, तेरे नाम लोगों को चंगा किया। मैं साफ कह दूंगा मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने वचन को जानता हूँ। मैं सबसे पहला प्रेम अपने वचन से करता, जो इससे करता है मैं उससे करता हूँ। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब देख रहे हैं मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। इजकल 37, 38, 39 पहुँच गया है। गोग मगोग रशिया, पर्शिया इज ईरान, टर्की लिखा हुआ है, लीबिया लिखा हुआ है। सब मिलकर अब इसराइल को घेरेंगे। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घेरा हुआ। तो जो अंदर है बाहर ना, जो बाहर है अंदर ना। आपके सामने चल रहा है कितना समय बचा है। इसलिए ये समय है कि हमने देख ही लिया कि सूर्य भी कितना सीरियस है, हम ना, उजाला भी कितना सीरियस प्रभु ने कमांड दी, तो हमें कितना सीरियस। प्रभु कहता कि जो रह जाएंगे हाय उन लोगों पर, वो ऐसे बुरे दिन होंगे जो आज तक कभी ना। लोग मौत मांगेंगे, मौत ना मिलेगी। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का शुक्र है कि अकेला सुनने वाले नहीं, सिर्फ विश्वास करने वाले नहीं, इस पर ईमान भी लाए, इस पर चले भी हम। तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए आइए हम प्रार्थना भी जाते हैं। प्यारे अब्बा, हम पिता तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने जो प्रार्थना सिखाई थी हमें चेलों को, अपने सबसे पहले शुरू किया था कि तुम इस तरह प्रार्थना किया करो कि ये हमारे पिता। हे प्रभु पिता, हम आपको पिता कहते हैं क्योंकि आप हमारे पिता हैं। आपने सारा सृष्टि कायनात को बनाया है, जो हम देख भी नहीं पाते चीज़ें उनको भी आपने बनाया है, हमें भी बनाया पिता आपने। और पिता आपने कितना अनुग्रह किया कि आपने अपना वचन हमको दिया, अपने सेवकों नबियों को दिया। इस तरह आपने हर युग तक अपना वचन पहुंचाया, और इस तरह आते आते इस आखिरी युग में भी आपने अपना ये वचन हमारे तक पहुंचा दिया। प्रभु आपका वचन ही हमारे लिए रोशनी है, दीपक है, लाइट है। ये हमें रास्ता दिखाता है, और सिर्फ एक रास्ता दिखाता है जो आपकी ओर जाता है पिता। पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया है कि आपका जो वचन है पिता परमेश्वर, उसे सुने, उस पर विश्वास रखें, उस पर चलें, बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाएं। तब आपने कहा है कि यहोवा भी अपनी आज्ञा को, अपने वादों को पूरा करेगा। आपने वादा किया है कि हर चीज़ की रक्षा करेगा, जिस देश में तुम जा रहे हो तुम्हें आशीष देगा। और प्रभु आपने वादा किया है कि वो प्रभु आप धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम्स को, सारी दुख मुसीबतों को दूर करेंगे पिता। और आप करते भी हैं पिता परमेश्वर। आपने आज तक हमको सिर बना के रखा है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस शाम के लिए धन्यवाद, इस सुंदर शाम के लिए। वो समय मुबारक होता है जब हम प्रभु जी आप में बिताते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जब हम आपसे बाहर निकलते हैं तो सिर्फ दुख है, तकलीफ है, स्ट्रेस है, टेंशन है इस संसार की।
जब आप में होते हैं तो सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। और हम जानते हैं जब हम प्रभु जी इस शरीर को छोड़ेंगे उस दिन ये सारी चिंताएं, सारे दुख मुसीबत उसी दिन खत्म हो जाएंगे। पिता परमेश्वर, हे पिता, अंत तक हमें ईमान में रखें और जिस भाई जोशुआ ने जिस मकसद के लिए आज ये धन्यवाद की प्रार्थना रखी है, आशीष दें, बल्कि हम सभी भाई बहनों को आशीष बरकत दें। पिता परमेश्वर, हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं, आप हमें प्रभु जी अपने रूहानी ब्लेसिंग्स से भर दें। पिता परमेश्वर, अपने वचन से, अपनी रूह से पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह दया कृपा हम पर बनाए रखें। और इस संसार की भी प्रभु जी जो हमारी ज़रूरतें हैं पिता, जब तक हम इस संसार में हैं, हे पिता, आपके स्वर्ग से पूरी होती रहें। पिता दयालु परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा हम पर बनी रहे। पिता परमेश्वर, ये सारी प्रार्थना हम मांगते हैं अपने और सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की जी। प्रभु जय बहुत सारी मसीह। आशीष और बरकत दे जी। आमीन।